जी हाँ, ये वीडियो बहुत टाइम बाद आया है और उसके लिए तहे दिल से सॉरी। करंटली अपडेट तो ये है कि मैं कान्हा में हूँ, पर ATR के बहुत से वीडियोस पेंडिंग हैं और अब से मेरी कोशिश रहेगी कि वो वीडियोस आपको थोड़ा रेगुलरली मिले। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम थे भद्रा टाइगर रिजर्व में, जहाँ 1 मिनट तो ऐसा लगा इससे भद्रा लेपर्ड रिजर्व क्यों नहीं बोलते। हमें लगभग हर सफारी में लेपर्ड मिला और यहाँ के लेपर्ड्स के स्टाइल ही अलग है। भद्रा में 2 दिन बिताकर हम निकले बैंगलोर, जहाँ से निष्ठा की ATR की जर्नी हुई समाप्त। गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग हुई है बैंगलोर में और क्योंकि हम बड़े दिन बाद सिटी में आए हैं तो तारा बहुत सारे पैकेजेस मैंने ऑर्डर कर लिए थे। सोचा कि जब तक सिटी में सारा फ़ायदा उठाया जाए तो एक एक करके पैकेजिंग खोलते हैं। मतलब वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ मिनिमलिस्ट रहने की, बट मुझे मज़ा बहुत आता है सामान ऑर्डर करने में। तो बड़े दिन बाद बहुत सारी शॉपिंग करी है। लेट्स ओपन द पैकेजेस। और बस अपना सामान खोलते खोलते ही शाम हो गई। आज का दिन बहुत ही प्यारा था क्योंकि आज होने वाला था बैंगलोर मीटअप। हाय एवरीवन, अनदर डे ऑन ATR और आज हम जा रहे हैं मीटअप के लिए बैंगलोर में। 2 दिन से बैंगलोर रुके हुए हैं, अभी 1 आध दिन और रुकना पड़ेगा और 5 बजे का मीटअप है। 4:10 हो रहे हैं, 1 घंटा दूर है। 5-7 मिनट में ही मुझे लग रहा है अपने मीटअप पे लेट पहुंचूंगी और उम्मीद है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे वहाँ पे मिलने भी वाले हैं। तो जल्दी आ जाओ और मिलते हैं, फटाफट बैठेंगे, बातचीत करेंगे ATR के बारे में और बढ़िया फोटोग्राफी के बारे में। कैसे इतनी देर निकल गई पता ही नहीं चला। हमने खूब सारी बातें की, बहुत सारे फोटोज लिए, ATR की कहानियां सुनी सुनाई, क्यूट सी शेरन से मिले और बस ऐसे ही शाम भी हो गई। सो मीटअप हो गया है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके। और क्योंकि हम सब लोगों से मिले हैं तो आई वुड वांट कि आप लोग भी सबसे मिलें। तो एक एक करके मैं सबके पास जा रही हूँ और आपको मिलवाती हूँ। शुरू करते हैं रत्नीश से, कांस्टेंट मेंबर ऑफ टीम AKB। Yes. So Sudhir sir is my god mentor and Arzu is my current mentor. Wow. That's how it is. Yeah. That's so nice. Yeah. Hello, my name is Tejas. That's it. I'm inspired by her photos, so I got inspired. I wanted to get into wildlife because of her. That's so nice. Thank you. But this has to be more about you and less about me. Okay, so tell about yourself. Hi, I'm Manish. I'm working in Bangalore and I have been a nature and a wildlife enthusiast from the beginning. And great opportunity to meet Arzu ma'am and congratulations and all the best wishes to her. Thank you. Whatever she is doing. And hopefully, maybe I will reach to some level. So I also do a lot of bird photography and wildlife photography. Sure. Great catching up. Thank you. Hi, this is Rishabh here. I've been into wildlife for about 2 to 3 years. Been traveling quite a bit with Arzu as well. And she's taught a lot about how to use the camera, especially when you're doing wildlife photography. So it's been a great journey with her, and yeah, to many more wildlife safaris and many more tiger reserves, because now she's exploring more, so we'll be able to go. For sure. Thank you. Hi, I'm Ariman. I'm a student at IIT Madras pursuing data science, and I've been a wildlife lover and a nature lover for about 14 years now, since the age of 8. And my goal this year is to go with Arzu on a trip for one of our workshops and learn more about photography and other things. Most welcome. Thank you. Hello, my name is Prateek. I'm an IT professional. I started going to wildlife, to jungles recently. I love the experience, and I love the way Arzu explains things, and her ATR is absolutely amazing. All the best. Thank you so much. Do great in life. Thank you so much. Yeah. Hi, I'm Shankar Kaushik. And thanks for madam. Thank you. हेलो गाइस, मेरा नाम है गिरिजेश और मैम से मिलके बहुत अच्छा लगा। और मेरा पेज है क्रिएचर ऑफ वाइल्ड लाइफ। थैंक यू। You can check out his work, Creature of Wildlife. Yeah, hi, I'm Mitesh. I'm a structural engineer. I'm a wildlife enthusiast, and her work and the ATR project has inspired me a lot to take up the wildlife photography. Oh, thank you. Don't be shy, come on. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಜು ಮೇಡಮ್. Thank you so much. Thank you, madam. Your name? ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದುರ್ಗಾ. Okay, there you go. Hi, I'm Apurva.
मैं 1 साल जस्ट हुआ है मेरा वाइल्ड लाइफ स्टार्ट किया. नेचर ऑलवेज इंस्पायर्ड मी in different way. That's it from my side. That's it. Thank you. कौन रह गया? You left. You are left. Don't hide behind. Come on. Hi, I'm Aditya. I was not that much more into wildlife. This new year resolution is to do more wildlife, and my first sighting was with Arzu only. Kabini, back then, yeah. So from that time I hadn't been to jungle. So is it? Yeah. Oh, okay. So I wanted a little more inspiration. So I met Arzu today. Perfect. And All the best. Start traveling more. Yeah, thank you. Yeah, myself Hasan. I'm a huge fan, man. Basically, I'm from Badra Tigers. आज का पूरा दिन आगे की आइटनरी डिज़ाइन करने में और ये सारा सामान समेटने में लगा है, क्योंकि हाइलक्स का सारा सामान हमको निकालना पड़ा और काफ़ी कुछ हमने ऑर्डर भी किया हुआ था, तो उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ा, इसलिए कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ है. और ये वीडियो में मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आज के दिन का काउंट दे पाऊँ. अदरवाइज़ कुछ खास हमने दिन में किया नहीं है. खाना बनाया है, खाया है और सामान पैक किया है और कुछ कोरियर्स मंगवाए हैं बढ़िया से. और एक ये नई बुक आई है जो मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ. एंड आई डोंट नो, आई जस्ट लव द स्मेल ऑफ यू बुक्स. चलो, आज का दिन तो बीत गया, अब आपको मैं मिलती हूँ कल. आज का दिन था मेनली ट्रैवल का दिन. हाफ वे पहुँच चुके हैं अमराबाद के, और अमराबाद के लिए हमने जो जगह बुक की है वो डिपार्टमेंट का ही एक गेस्ट हाउस है. वहाँ से आप सफारी के लिए जा सकते हैं. दोपहर की सफारी भी थी हमारी आज की, पैकेज में इंक्लूडेड, बट हम टाइम पर पहुँच नहीं पाएंगे बिकॉज 9 घंटे का रास्ता था हमारा बैंगलोर से. तो अभी कल सुबह की एक सफारी होगी वहाँ से, और वेबसाइट से बुक कर सकते हैं आप. वेबसाइट पे सिंपली जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा. पर बहुत लंबी ड्राइव हो गई आज की, बहुत ही लंबी. तो चलते हैं. अभी तक तो हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, अब अचानक बहुत कुछ मिल गया. कर्नूलू समथिंग नाम का एक डिस्ट्रिक्ट आया है जहाँ पे एस्पोसितो पिज़्ज़ा की दुकान थी, तो हमने यहाँ से करा लिया पिज़्ज़ा पैक. अब देखते हैं कैसा है पिज़्ज़ा. खुशबू तो बहुत सही है. आज का दिन है अमराबाद टाइगर रिजर्व को अंदर से एक्सप्लोर करने का दिन. करीब 2600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला अमराबाद टाइगर रिजर्व इंडिया के कुछ सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में आता है. इसका टेरेन हिली और पथरीला है और गर्मी में जंगल काफ़ी ड्राई हो जाता है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक नया दिन है, बढ़िया सुंदर सुबह है एडीआर पर, और आज हम आए हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व. अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना का एक टाइगर रिजर्व है. 2 टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में इन टोटल, और अमराबाद टाइगर रिजर्व और कंवल टाइगर रिजर्व. अमराबाद जो है इसका फॉरेस्ट अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है. ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, पर जंगल में जो प्रे बेस है वो बहुत अच्छा है, अमेजिंग प्रे बेस है. और यहाँ पे डिपार्टमेंट ने जो एफर्ट किया है जंगल को और विलेजेस को, यहाँ पे एक चेंचू ट्राइब है लोकल, उनको कोएग्जिस्ट कराने का, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ऑफ कोर्स इसके बारे में और बात करेंगे. अभी फॉरेस्ट से एक्सप्लोर कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. सफारी स्टार्ट किए करीब 45 मिनट्स हुए हैं और सनराइज़ हुआ है. ये जो हम कर रहे हैं ये टाइगर स्पेशल सफारी है. यहाँ पे कैटेगराइज्ड है सफारीज़. तो अगर आप डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में रुकते हैं तो आप ये सफारी कर सकते हैं कैंपर में. और अगर आप बाहर रुकते हैं और आपको जनरल सफारी करनी है तो बाहर 1-1 घंटे की सफारी होती है 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, वो भी आप कर सकते हैं. हम लोग डिपार्टमेंट के ही गेस्ट हाउस में रुके हैं जो हमने वेबसाइट से बुक किया था, तो हमें ये सफारी मिली है. कल ओरिएंटेशन था और कल भी एक सफारी सफारी थी. एक्चुअली ट्रैक मॉर्निंग में होता है, तो वो तो हमारी मिस हो गई, इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया कि मॉर्निंग में हमें सफारी करने दी जाए. एंड दे वर आई मीन गुड इनफ, दे वर नाइस इनफ टू अलाउ अस टू डू दैट. तो इसीलिए हम अभी सफारी में आए हैं. मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और अभी मैं इस व्यू पॉइंट पे हूँ. ये अपने आप में बहुत ही सुंदर जगह है. आज थोड़ा हेज़ी है इसलिए आपको शायद उतना अच्छा व्यू नहीं मिले व्यू पॉइंट का, बट व्यू पॉइंट काफ़ी सुंदर है. और यहाँ पे जब आप सनसेट में आएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा.
ATR में हमारा पर्पस था जंगल को अंदर से देखना और इसके बारे में थोड़ा समझना। मॉर्निंग में ये सारा एरिया देखा पर वाइल्ड लाइफ का कोई खास मूवमेंट नहीं मिला। फिर अपनी सफारी पूरी करी और हम वापस आ गए अपने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। तो पैकिंग हो गई है, सफारी ख़त्म कर दी थी और वही रेगुलर सफारी थी अपनी। जंगल आपको मैंने दिखाई दिया था और जंगल ड्राई डेसिडियोस है, अभी खास कुछ मूवमेंट नहीं था। बर्डिंग थी थोड़ी सी, बट अगेन बर्ड्स एनिमल सब लोग बहुत शाय हैं जंगल में। अब पैकिंग वैकिंग हो गई है, सामान सब भेज दिया है एंड नाउ द जर्नी बिगिंस टू श्रीसेलम टाइगर रिजर्व। प्रॉब्लम क्या आ रही है, श्रीसेलम की इन्फॉर्मेशन मुझे ज़्यादा नहीं मिल रही है। ऑनलाइन जो है बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा दिक्कत नए टाइगर रिजर्व में ये आती है, आपको ये नहीं पता होता गेट कौन सा बुक करना है। क्योंकि क्या होता है, टाइगर रिजर्व बहुत बड़ा है, जैसे अमराबाद ही अराउंड 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। तो अगर इतना बड़ा टाइगर रिजर्व होगा और आप गूगल मैप से गलत गेट पे पहुंच जाएं तो आपको दूसरे गेट पे पहुंचने में ही 2, 3, 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो अभी हम ये फिगर आउट कर रहे हैं कि श्रीसेलम में कौन से गेट पे जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों से पूछा है, कुछ लोग जो वहाँ के हैं वो कॉन्टैक्ट्स डिग इन कर रहे हैं। एक बार राइट कॉन्टैक्ट मिलते ही फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और आज काफ़ी सारी एडिटिंग भी करनी है, तो सारा काम ख़त्म करते हैं चल के। तो अमराबाद से निकलने से पहले कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बहुत तरीक़ों से अमराबाद की बेटरमेंट के लिए और आसपास का जो चेंचू ट्राइब है लोकल, उसकी बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी कुछ ऑफिसेज हैं, तो हम देखते हैं किन से मिल पाते हैं और किन से बातचीत कर पाते हैं अगर हो पाए तो, ताकि थोड़ा सा बेटर पर्सपेक्टिव मिल जाए अमराबाद पे। कुछ देर बाद हमें पता चला कि अमराबाद से हमारे साथ ले जाने के लिए बहुत सारी नॉलेज है, जिसकी तलाश में हम पहुँचे ECE। मेरा नाम श्वेता है, मैं यहाँ की अमराबाद टाइगर रिजर्व में एजुकेशनल ऑफिसर की तरह काम करती हूँ। जहाँ पर आप अभी है, ये हमारा लैब है, यहाँ पर बहुत सारा रिसर्च वर्क होता है एंड आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्पेसिमेंस भी इधर लगाया हुआ है। हम लोग यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व के लिए हमारे पास अमरनूर जंगल रिसोर्ट बोल के एक बुकिंग कर सकते हैं, जहाँ पर रिसोर्ट में आके रह सकते हैं। आने के बाद आप यहाँ रहने के बाद आपका एक सफारी होता है, एक ट्रैकिंग होता है। तो जो ट्रैकिंग अगले दिन सुबह होता है। तो जो अगर कहीं और देखेंगे तो आपको टाइगर रिजर्व में अगर टाइगर देखने के लिए अगर आप फॉरेस्ट के अंदर जा रहे, जंगल के अंदर जा रहे, तो कल आपको टिकट बुक करके जाके गाड़ी में बैठ के जाना होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि ताकि वो लोगों को पता चले कि ये अमराबाद टाइगर रिजर्व क्या है। ये तेलंगाना में होने के बावजूद बहुत सारे लोग श्रीशैलम फॉरेस्ट कहते हैं, तो हम लोगों को इसका रिकॉग्निशन चाहिए और लोगों को मालूम होना चाहिए कि तेलंगाना में भी एक अच्छा सा टाइगर रिजर्व है विच इज़ कॉल्ड एज अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो जो भी आते हैं हम लोग लंच होने के बाद 2:45 को उनको ये ओरिएंटेशन कहते हैं, उनको लेके आके एक छोटा सा अमराबाद टाइगर रिजर्व का वीडियो दिखाते हैं और हमारे यहाँ पर एक चेंचू हट मिनिएचर बना हुआ है और चेंचू कल्चर के बारे में बताते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ के क्या क्या नए तरीके यूज़ करते हैं जिससे हम लोगों को जानवरों के बारे में पता चले और क्या क्या मैनेजमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। जैसे ग्रासलैंड बना सकते हैं या जहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं है तो हम लोग एक छोटा सा पॉन्ड क्रिएट करते हैं, जैसा नेचुरली वो पॉन्ड ओवरटेक करता है, तो एक अच्छा सा बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होता है जिससे जानवर भी आने लगते हैं। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ। उसके अलावा ज़्यादातर ये स्पीड के कारण बहुत सारे जानवरों को बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। तो जो भी जानवर जो देखने लायक और अच्छा रहते हैं ताकि लोग देख के डरे नहीं, ऐसे जानवरों को बहुत सारे बड़े जानवर भी मर जाते हैं लेकिन उनको स्टोर करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे छोटे छोटे जानवरों को जो बॉक्स में लगा सकते हैं वो हम लोग यहाँ लेके आए। ज़्यादातर स्नेक्स इसीलिए लेके आते हैं क्योंकि लोगों को सांपों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और डरते भी बहुत है और जैसे ही देखते हैं उनको मार दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ज़्यादातर सांपों को लगाया है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस यहाँ पर आते हैं और हम लोग हमेशा उनके लिए कॉम्पिटिशन्स लगाते हैं जो वाइल्ड लाइफ डेज होते हैं और जो बहुत अच्छा करते हैं उनको फ्री सफारी लेके जाते हैं और वो लोगों को भी यहाँ पर कंपलसरी एजुकेशन के लिए एक वाइल्ड लाइफ के बारे में बताते हैं, जानवरों के बारे में बताते हैं और ये लाभ लेके आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो सांप है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक जो है यहाँ पर दे कॉल इट एज सैंड बोआ, हिंदी में 2 मुहा सांप कहते हैं। इसके पीछे एक मिथ है क्योंकि ये 2 मुँह रहते हैं और एक 6 मंथ्स एक तरफ जाता है, दूसरे 6 मंथ्स एक तरफ जाता है बोल के सोचते हैं। ये करेक्ट नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहुत ही स्लो फजूल है, वो तो ज़मीन के अंदर रहने वाला सांप है
तो जब चलता है कंपैरेटिवली अदर स्नेक से थोड़ा स्लो चलता है, तो अपने आप को बचाने के लिए प्रेडेटर से, जब अगर प्रेडेटर अटैक करता है तो उसका सर मुंडी अंदर लगा लेता है और टेल को बाहर लगाता है। तो अगर देखेंगे, गौर से अगर देखेंगे तो इसका टेल ब्लंट होता है और ये दूसरे जानवर का अटैक करने के वजह से वो पूरे मार्क से। लेकिन स्नेक चार्मर आपके पास जब लेके आएगा तो बोलेगा कि ये दो मुँह सांप पे एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। सांपों को उतना दिमाग नहीं है कि वो कैलेंडर फॉलो कर सके और ना ही वो हमें लड़का या लड़की भी वो पहचान नहीं सकते हैं। और ये रजस वाइपर है, बिग फोर वेनमस स्नेक में आने वाला एक सांप है। ये इसका वेनम हीमोटॉक्सिक वेनम होता है और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट स्ट्राइकिंग स्नेक कह सकते हैं। 1/3 ऑफ सेकेंड में नंबर ऑफ बाइट दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा नंबर ऑफ बाइट्स देगा, लेकिन उसका स्पीड के हिसाब से बता रही हूँ। और अगर देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल स्नेक है, इसके हेड से लेके टेल तक देखिए, जैसा हमने स्टेंसिल लगा के ड्राइंग किया हो, एकदम परफेक्ट ओवल शेप मार्क होता है। ये सांप को देखने से पहले हम लोग सुन सकते हैं, क्योंकि ये एक अजीब सा प्रेशर कुकर का जो साउंड होता है, इस प्रकार का साउंड करते से बहुत जोर से करता है। तो अगर कभी भी आप क्योंकि अगर ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे या बुशेस होंगे या लिटर होगा, लीफ लिटर, उसमें अगर ये सांप बैठा हुआ तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसका आवाज़ से पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक जहरीला सांप है। और सांप अगर आप देखेंगे डर के मारे आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे तो भी उनको सुने सकेंगे, क्योंकि उनका जो भी एयर में होता है, ओके, साउंड जो एयर में ट्रैवल करते हैं वो सुन नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी वाइब्रेशन धरती से जाता है वो अच्छी तरह उनके बेली स्केल सेंसिटिव होने के कारण वो बहुत ही अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। वाइब्रेशन से वो एसोसिएट करते हैं थ्रेड के लिए। यहाँ हमारी मुलाकात मैडम के अलावा हुई DFO सर से, जिन्होंने अमराबाद के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया। My name is Mahendra Reddy, working as a wildlife biologist for Amravati Tigers since 2018. See here in this lab, we do two works. One is the food and feeding habits of this implanted species, what they eat, what is the quantity, and second is to know the animal health status. For that, we are doing the gastrointestinal parasitic load in the wild animals. So we have collected all fecal matter of the wild animal samples. So here we do two techniques. One is the flotation and second one is the sedimentation technique. Then only we can able to recover all these parasites which are found in the herbivores as well in carnivores. And apart from that, we also do the scat analysis. With this scat, these are the hair samples of carnivores, undigested one. So we can take out these hairs and we can able to identify based on medulla and cuticule pattern. With this, which prey the predator has eaten. So all those works we do, and secondly we do also taxidermy technique. See, these are all the roadkill animals we collected, whichever good condition the animals we collected, and we removed all meat and bones, and we kept here these are all the how animal is previously. We also do the fill the with cotton, and we'll do this technique, and all these are the collected in. These are the collected roadkill animals we preserved in the 10% formalin. तो अमराबाद टाइगर रिजर्व में आने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ टाइगर देखेंगे। टाइगर साइटिंग्स ऑफ कोर्स उतनी नहीं है एज कम्पेयर टू जैसे रणथंबोर या फॉर दैट मैटर बांधवगढ़ है, क्योंकि टाइगर्स हल्के शाय है अभी और ग्रेजुअली यहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो रहा है। पर यहाँ पे आने के कुछ फ़ायदे हैं जो मुझे अभी तक और कहीं नहीं मिले हैं। 31 टाइगर रिजर्व्स हम कर चुके हैं कवर ATR में, ये 31st है और तेलंगाना का वन ऑफ द टाइगर रिजर्व्स है, 2 है तेलंगाना में। यहाँ पे प्रॉपर एक लैब है जो कि बहुत वेल मैनेज्ड है और यहाँ पे पीछे आप मेरे देख सकते हैं सारे स्पेसिमेंस रखे हुए हैं जो रोड किल में एनिमल्स मरे हैं। और यहाँ पर एवरी वीक स्टूडेंट्स को लाया जाता है, जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर सफारी करने उन्हें लाया जाता है और पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे एवरीथिंग इज़ रिलेटेड, एवरीथिंग इज़ कोएग्जिस्टिंग। टाइगर की पूरी इकोलॉजी, टाइगर का पूरा हैबिटेट, एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द टाइगर वो पूरा बताया जाता है। और साथ में ये बताया जाता है कि ऑफ कोर्स आप अगर ओवर स्पीड करते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। One of the most saddening thing what I see over here is that there is this little fetus of a spotted deer. ये spotted deer mother जो थी ये carrying थी, pregnant थी और
रोड एक्सीडेंट में मर गई थी, तो फीटस को प्रिजर्व करके रखा गया है यहाँ पे। और ये सब चीज़ें देख के आपको एक्चुअली लेसन मिलता है कि हमें जल्दी तो हर जगह पहुँचने की बहुत होती है, पर अगर हम जंगल के बीच में से रोड लेकर के जा रहे हैं तो पहला जो राइट है वो एनिमल्स का है, उस पर थोड़ा सा समझदारी से चलाइए, थोड़ा सा स्लो चलाइए और आंखें खोल करके चलाइए। तो जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये अमराबाद टाइगर रिजर्व का ओरिएंटेशन सेंटर है और यहाँ पर स्टूडेंट्स को बुला करके वीकेंड्स पे कुछ ना कुछ ओकेजन्स होते हैं, उन पे उनको बताया जाता है एनिमल्स के बारे में, एक पर्टिकुलर एनिमल पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। अभी मेरे पीछे लेपर्ड है, ये ऐसी साइटिंग्स यहाँ पे होती हैं कॉमनली। हमें तो एक दिन एक सफारी का मौका मिला, बट अगर थोड़ा सा टाइम दिया जाए तो इंडियन वुल्फ का फोटो भी लगा है, स्लॉट्स बेयर भी है एंड 4 हॉर्न एंटीलोप है। ऑफ कोर्स हम सबका फेवरेट टाइगर भी है और टाइगर की काफ़ी अच्छी पिक्चर लगी हुई है, लाइक गुड साइटिंग्स एंड हियर रैटल आल्सो ओवर हियर। ये सारी चीज़ें अमराबाद में आपको दिख सकती हैं। ऑफ कोर्स आकर के थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, पर फोटोग्राफ्स हैं तो ऑफ कोर्स एंड सभी अमराबाद से हैं, तो अपने आप में पता लगता है कि बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली यहाँ पर है और जंगल बहुत ही रिच है अपने आप में। ऑफ कोर्स टूरिज़्म जो है वो थोड़ा रीप करने की ज़रूरत है, ग्रेजुअली वो हो भी जाएगा, पर अगर हम और आप ऐसे टाइगर रिजर्व्स में ट्रैवल नहीं करेंगे तो ऐसे टाइगर रिजर्व्स को और यहाँ के लोकल्स को मौका भी नहीं मिलेगा। तो एक छोटा सा प्रण कर लीजिए कि साल में सीजन में एक किसी ऐसा अननोन टाइगर रिजर्व में जाना है। तो हम अमराबाद क्रॉस ही कर रहे थे और कोई हमें जो इंस्टाग्राम पर काम देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो हमें मिल गए और बहुत अच्छा लगता है ऐसे चलते चलते रोड पे अगर कोई इतने वक्त से मुझे सपोर्ट कर रहा है और अचानक से आकर के मिलता है और मुझे पता लगता है वो चेहरा कौन है जो वीडियोस के पीछे जो पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल फीलिंग विद सेल्फ। और अभी वो हमारे लिए प्योर हनी लेने के लिए गए हैं 2 मिनट का वेट बोल करके, तो आते हैं तो मैं आपको मिलाती हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और कहीं पे ऐसे मिलो तो ज़रूर आके हेलो बोलना। छोटे छोटे क्या करत हो? आपकी सारी वीडियो में आप यहीं पे लटके हो, आपको पता है। फिर कुछ देर बाद हम निकले अगले डेस्टिनेशन नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व की तरफ। जब आप अमराबाद से श्रीसेलम की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में एक ऑक्टोपस व्यू पॉइंट नाम की जगह आएगी और ये बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है और हमने अभी इसका ड्रोन शॉट देखा था डिपार्टमेंट की मूवी में, तो उसको देखने के लिए हम इधर आए हैं। पर अभी धूप बहुत तेज निकली हुई है, लाइट भी थोड़ी सी खराब है, तो उतना अपीलिंग तो वीडियो में आपको नहीं दिखा पाऊंगी। पर नेक्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पर आए तो शाम के टाइम या मॉर्निंग के टाइम ये ऑक्टोपस व्यू पॉइंट है जहाँ पे आके आप कुछ अच्छे फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं। पहाड़ी दाल चावल खाने हैं मुझे। दाल होती है बिल्कुल पतली, अपना तेर के खाओ दाल चावल ना, और मूली वूली कटी हुई हो फर्स्ट क्लास। अच्छे सबसे अच्छी दाल में से एक होती है पहाड़ी दाल चावल खाना, बेस्ट होता है सच में खाने में। यहाँ कहाँ मिलेंगे? आंध्रा में? यहाँ नहीं मिलेंगे कुछ भी, पक गए यहाँ खाना खा के। यार खाना तो अच्छा था साउथ इंडिया का, बस ठीक है, कराई तो रिपोर्टें सब गड़बड़ आई है अनहेल्दी हो गए सब। दे दीजिए एक कप। बस 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 बस। आंध्रा में हो चुकी है अपनी एंट्री और ये है हमारा आंध्रा का पहला मील। यहाँ एक बहुत तेज मिर्ची वाली दाल, फ्राइड आलू की सब्जी, बहुत सारे राइस, तरी वाली आलू की सब्जी और पिंक कलर के पापड़। खाना अच्छा है पर बहुत मिर्च है, इतनी मिर्च है कि अच्छे से फील हो रही है कितनी मिर्च है, बस पसीने आ रहे हैं पर भूख बहुत लगी है। तेलंगाना से आंध्रा के सफ़र में हमें ये समझ आया कि यहाँ खाने में मिर्च नहीं, मिर्च में खाना मिलने वाला है। तो फाइनली आज उस डेस्टिनेशन पहुँच गए हैं जो आज का फाइनल डेस्टिनेशन है, श्रीसेलम टाइगर रिजर्व और नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व। और अगर आप कभी यहाँ पर आएँ तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक गेस्ट हाउस है जो आप बुक कर सकते हैं। हमने यही बुक किया है, ऑनलाइन बुक किया है और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है जैसा अमराबाद में था। सफारी जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। एक सफारी हमने मिस कर दी क्योंकि वक्त पे हम नहीं पहुँच पाए और अब कल मॉर्निंग की हम सफारी करेंगे। टाइगर साइटिंग्स लास्ट यहाँ पे जनवरी 6 को टाइगर दिखा था और अब कल मॉर्निंग में जाकर के देखते हैं
क्या सीन रहता है। बाकी आज थक बहुत गए हैं और जो रास्ते में खाना खाया था दैट्स रियली नॉट गोइंग वेल विद मी। मतलब बहुत मिर्ची थी, हद से ज़्यादा मिर्ची थी, तो आई जस्ट फील अ लिटिल सिक राइट नाउ। बट अभी सामान वामान उतारते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं। यहाँ नेटवर्क नहीं है, एक और प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ भी स्टोरी वोरी कुछ नहीं डाल सकती हूँ। एक बार सामान उतार करके हो सकता है बाहर जाएं, थोड़ा नेटवर्क ढूंढें और फिर वापस आके एडिटिंग करके आज का दिन ख़त्म। हाँ, क्या फूड वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। फूड नॉर्मली जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर फूड। और हम लोग मिर्ची खा के ऑलरेडी परेशान हो गए थे, तो हमने जो यहाँ पे शेफ़ है अब्दुल्ला जी, उनसे रिक्वेस्ट करी लाइट खाना बनाने के लिए। उन्होंने कमेंडेबल खाना बनाया, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही बनाया, एकदम लाइट, नमक भी हल्का, मिर्ची भी हल्की, तेल भी हल्का। तो अगर आप यहाँ पे आए ना तो उनको मेरा हेलो ज़रूर बोलना। और रात में एक इंटरेस्टिंग मोमेंट हुआ। लेपर्ड हाँ, लेपर्ड था वो। ये है ना, ट्रेल है पूरी। ये देखो, ये गया ना। हाँ, लेपर्ड था वो। एक्चुअली वो मैंने साइज से देखा ना। ये छोटे डाग के हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट है, ये है उसके झाड़ के बाद वहाँ से वो दोनों झाड़ है ना, वहाँ पे कुत्ते के चक्कर में आया ये कुत्तों के हैं। तो यार ये रात को वापस आ सकता है इसी रूट से। नहीं, नहीं, इस तरफ चल रहा था ना। हाँ, इसी से उधर गया ना मैं। ओके, वो देख रहा हूँ मैं इधर। हम अभी बाहर वॉक कर रहे थे और अचानक से आवाज़ आई सांबर की बोलने की। कुछ देर वो बोलता रहा और एकदम से आवाज़ आई कि टाइगर है बाहर। टाइगर ही बोले तुम्हें। अभी क्रॉस किया यहाँ से, अब हम पगमार्क्स देखने आए हैं। हमें झलक दिखी है, ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा, झलक दिखी है बिल्कुल। तो वी जस्ट केम ओवर हियर टू सी द पगमार्क्स। पता नहीं कहाँ से आया, क्या था, पर कहीं अंदर ही अभी छुपा हुआ है। अगले वीडियो में हम चलेंगे इंडिया के लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीसेलम को देखने। ये टाइगर रिजर्व 3700 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला है और इसको एक्सपीरियंस करने का अपना ही मजा है। इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होने के बावजूद भी काफी लोगों ने इस टाइगर रिजर्व के बारे में नहीं सुना है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप इस टाइगर रिजर्व के आसपास जाएं तो टाइगर रिजर्व के अंदर जाना मत भूलिएगा।